Hello, welcome dear students. This is Ashutosh Mishra and today we are going to learn the most important topic for school section as well as college section students. The most important topic in English grammar, clauses. Clauses means vakyans. So today we are going to learn clauses. This is the most important topic. So please concentrate your mind here for 10 minutes and then there will be no doubt in clauses. This is the most important topic. You need to identify them. You need to identify what is main clause, what is subordinate clause, and after this lecture, after this video, you would be able to find it out. You will be able to identify what is main clause, what is subordinate clause. So today we are going to learn the clauses. Clauses means vakyansh, vakya ka ansh, and also we will see kinds of clauses. Okay, so what is clause? We say, see the definition, clause is a part of a large sentence. See what is here in Hindi, vakyansh, vakya ka ansh. Clause is a part of a large sentence. बड़े से सेंटेंस का जो पार्ट होता है उसे क्लॉज कहते हैं. इसे आपने जुडिशियल या फिर लॉ के बारे में जब आपने सुना होगा तो भी क्लॉज मीन्स धारा जो यूज होता है. तो क्लॉज जो है वो सेंटेंस का ही एक छोटा सा पार्ट होता है. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस. बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है. कहते हैं the clause has, so here I am writing, clause is a part of a large sentence that has a subject and a predicate. That has a subject and a predicate. Clause बड़े से सेंटेंस का वो पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा. इन 5th और 6th स्टैंडर्ड वी टीच देम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो बाकी रह जाते हैं सेंटेंस में वही तो प्रेडिकेट होता है. तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा. यह 5th और 6th के स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है. क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ओके, नाउ वी विल सी kinds of clauses. There are two kinds of clauses. There are two kinds of clauses. The first one is main clause. Okay, now what is main clause? Main clause is a meaningful sentence. Main clause is a meaningful sentence. Main clause is a meaningful sentence, and this main clause is also called independent clause. Independent clause and principal clause. So main clause can be also called as independent clause or principal clause. मेन क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. बहुत ही सिंपल लॉजिक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस होता है. ये किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंड नहीं होता है अपने मीनिंग के लिए. तो इसके लिए इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज. और प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल मतलब भी मेन ही होता है. सो मेन क्लॉज को इन तीन नामों से बुलाया जा सकता है: मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज. अभी आपको पता चल गया है मेन क्लॉज इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, the policeman blew his whistle
and the car stopped. The policeman blew his whistle and the car stopped. In this sentence, we can see there are two sentences. The policeman, subject, blew, verb, his whistle, object. Subject, verb, object. This is a complete sentence. This is a meaningful sentence. We can say this is a complete sentence. The policeman blew his whistle. And this is a conjunction. The car stopped. Again, this is a meaningful sentence. Here, there are two meaningful sentences. One is the policeman blew his whistle. Second is the car stopped. Here, both the sentences, both the clauses, policeman blew his whistle, first clause, and the car stopped, second clause. These two clauses are making a large sentence. This kind of sentence is called compound sentence. This kind of sentence is called compound sentence. Okay, compound sentence किसको कहते हैं? Main clause plus main clause plus main clause. आपको समझ में आ गया होगा. Main clause जब जुड़ते हैं, more than 2, 3, 4, 5 main clauses joined together with the help of coordinating conjunction, they are called compound sentence. जब main clauses जुड़ते हैं तो वो कौन सा sentence बनता है? Compound sentence बनता है. ओके, तो मेन क्लॉज आपको समझ में आ गया. क्या समझ में आ गया? मेन क्लॉज इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मेन क्लॉज इज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मेन क्लॉज इज अ प्रिंसिपल सेंटेंस. मेन क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है मीनिंग के लिए. ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि मेन क्लॉज क्या होता है. अब जो दूसरा है, हमें समझना है सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है. सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट भी कहते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज. अब सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड होता है मेन क्लॉज पे अपने मीनिंग के लिए. कहते हैं अ सबऑर्डिनेट क्लॉज does not express a complete thought. A subordinate clause does not express a complete thought. और एक चीज ऐड करेंगे, it depends on main clause for its meaning. सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है अपनी मीनिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, द कार stopped. The car stopped when the policeman blew his whistle. The car stopped when the policeman blew his whistle. अब ये सेंटेंस वही है लेकिन अलग तरीके से है. क्या इसमें डिफरेंट क्या है? द कार स्टॉप्ड, ये तो मेन क्लॉज है. व्हेन द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल. ओके, अब ये यहां जो दो क्लॉजेस हैं, एक तो है द कार स्टॉप्ड और दूसरा है व्हेन द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल. अब व्हेन द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. आपको पता है ये सेंटेंस पहले भी यूज हुआ है, द कार स्टॉप्ड, कार रुक गया. ये तो पूरा मीनिंग है, पूरा थॉट एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये कौन सा क्लॉज है? ये मेन क्लॉज है. तो फिर ये सबऑर्डिनेट क्यों है? क्योंकि व्हेन द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल,
जब पुलिसमैन ने विशल बजाई, सिटी बजाई, तो जब ये when the policeman blew his whistle, अगर हम इसको कवर कर देंगे तो when the policeman blew his whistle ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं करता है। जब पुलिसमैन ने सिटी बजाई तो क्या हुआ, क्या मालूम, जब ये भी इसके साथ होगा, द कार स्टॉप। अच्छा, मतलब पुलिसमैन ने विशल बजाई तो कार स्टॉप हुआ, मतलब जब तक ये सेंटेंस मेन क्लॉज नहीं होगा तब तक इसका when the policeman blew his whistle हाफ मीनिंग होगा, इसका पूरा मीनिंग नहीं होगा अगर यहां से इसको कवर कर दिया जाए। यही डिफरेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसीलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ये जो है वो मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। इसीलिए when the policeman blew his whistle ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके ठीक है, आप यहां एक बार आ जाएं, एक बार रिवाइज कर लें। क्या है, द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, पुलिसमैन ने विशल बजाई, द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। अब पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, पुलिसमैन ने विशल बजाई, ये पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गया, ये भी पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है। मतलब ये दोनों भी सेंटेंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो कंडीशन है वो थोड़ा अलग है। द कार स्टॉप्ड, कार रुक गया, ये तो मेन क्लॉज है, ठीक है, इसके पूरे मीनिंग है व्हेन द पुलिसमैन ब्लू, जब पुलिसमैन ने विशल बजाई। अब अगर ऐसा बोलेंगे जब पुलिसमैन ने विशल बजाई तो ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं है और सिर्फ कह रहे हैं कि जब पुलिसमैन ने विशल बजाई, मतलब क्या हुआ, तो जब पुलिसमैन ने विशल, तो वो मीनिंगफुल नहीं होता है किसके बिना, मेन क्लॉज के बिना। इसीलिए कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, यहीं पे मैं आपको लिखता हूं। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं। एक एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा होता है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज और नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन तीनों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो मुझे पता है आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, इसको पूरा देखें, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे, उसके पहले भी आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स जो भी रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। और भी ज्यादा जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, I saw a man who was blind. मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। I saw a man, ये मेन क्लॉज है, मैंने एक आदमी को देखा, तो ये मेन क्लॉज है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। Who was blind, जो अंधा था, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्यों है, क्योंकि अगर इसको यहां से हटा दिया जाए who was blind तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये हाफ मीनिंगफुल है। जो अंधा था, जो अंधा था मतलब क्या, जब इसको अनकवर करेंगे, देखो आई सॉ अ मैन, अच्छा मैंने जिसको देखा वो अंधा था, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इसीलिए है क्योंकि ये डिपेंड है मेन क्लॉज के ऊपर अपने मीनिंग के लिए। जब तक सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मीनिंगफुल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, राजू ब्रॉट the books that you ordered. राजू brought the books that you ordered. यहाँ राजू brought the books, राजू बुक लाया, ये मीनिंगफुल है, इसीलिए ये मेन क्लॉज है। that you ordered, जो तुमने ऑर्डर किया था, अच्छा मतलब जो जिन बुक्स का ऑर्डर किया था वही लाया है राजू। तो दैट यू ऑर्डर, जो तुमने ऑर्डर किया था, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड करता है मेन क्लॉज के ऊपर अपने मीनिंग के लिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इतना समझा दिया है आपको कि मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। और भी ज्यादा एग्जांपल्स आपको चाहिए तो लाइक करना, कमेंट करना, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको समझाएंगे इन 3 चीजों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द क्लॉज, क्वेश्चन रहता है आइडेंटिफाई द क्लॉज, मींस आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। तो सिर्फ आपको मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज ही आइडेंटिफाई नहीं करना रहता है, मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना रहता है, और साथ ही साथ आपको बताना रहता है कि सबऑर्डिनेट में कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्या वो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है या एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है या नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको लेकर के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें और भी पता चले कि आप लोग इसे देख रहे हैं, और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।